Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the last topic of this chapter, that is single cell protein. So let's move to the whiteboard. So dear students, this is the last topic of this chapter, that is single cell protein. So first of all इसकी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं. It is single cell. यहाँ पर सिंगल सेल जो है इट रेफर्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और डियर स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन शामिल है? ऑल प्रोकैरियोट्स, means bacteria. They are unicellular and some of them they are colonial. And dear students, also among the protozoans which are animal like protists, all of them they are unicellular, as well as some algae and some fungi like we have discussed already, the yeasts. The yeasts are the unicellular fungi. तो यहाँ पर सिंगल सेल it refers to this one, the unicellular organisms. And protein, dear students, this is basically organic food component that is made up of amino acids. So dear students, single cell protein, now it refers to the formation of proteins by using unicellular or single celled organisms. In genetic engineering, we have studied about the transformation of microorganisms, by the introduction of genes of beneficial proteins, for example insulin. तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया था लाइक इन बैक्टीरिया के अंदर हम ऐड करवा रहे थे जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ इंसुलिन, जो कि एक बेनिफिशियल प्रोटीन बनवाएगा, बिकॉज इंसुलिन दैट इज़ अ हार्मोन, and hormones they are proteins in nature. Clear? इसी तरह से dear students, single cell protein refers to the protein content extracted from pure or mixed cultures of algae, yeast, fungi or bacteria. So that is the definition of single cell protein. This is important regarding short questions. तो a single cell protein refers to protein content, जो protein content हम हासिल कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं from pure or mixed culture of algae, yeast, fungi or bacteria. So that is called a single cell protein. For the production of single cell proteins, the microorganisms are grown in fermenters. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फर्मेंटर्स को डिस्कस किया था और उसमें हमने बात की थी कि जो फर्मेंटर्स होते हैं, द फर्मेंटर्स आर द डिवाइसेस which
provide optimum environment to microorganisms for growth. So dear students, यहाँ पर भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम उनको यूटिलाइज करते हैं और उनसे प्रोटीन्स बनवाते हैं और ये उनको ग्रो कहाँ पर करवाया जा रहा है? दे आर ग्रोन इन द फर्मेंटर्स. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज अ वेराइटी ऑफ सबस्ट्रेट. लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर सिंगल सेल प्रोटीन में और जो नॉर्मल वहाँ पर हम फर्मेंटर्स के अंदर फर्मेंटेशन करवा रहे थे, वो बैच फर्मेंटेशन और कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन, वहाँ पर तो जो सबस्ट्रेट को यूज़ किया जा रहा था, लाइक कार्बोहाइड्रेट जो है उसको फर्मेंटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा था, या फिर एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से हम, तो वो तो बहुत यानी कि साफ़ सुथरी चीज़ें होती थी, एक रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल हो रहा होता था. यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है सिंगल सेल प्रोटीन का कि यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं सबस्ट्रेट को लाइक एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, नेचुरल गैस लाइक मीथेन. सो इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सबस्ट्रेट. ये MCQs के लिए भी याद रखना है कि सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर वेस्ट को, इंडस्ट्रियल वेस्ट को, और इसके अलावा नेचुरल गैस लाइक मीथेन. इसके ऊपर जो है वो एक्ट करेंगे, इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द यूनिसेलुलर microorganisms, and they will produce the products. So microorganisms grow very vigorously and produce a high yield of protein, और इससे काफ़ी बड़ी मिकदार में प्रोटीन जो है वो हासिल होती है. The protein content produced by microorganisms is also known as novel protein, or also called as mini food. That is another important short question. So remember it. It is a short question. Clear? तो जो प्रोटीन कंटेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस करवाया जा रहा है बाय यूजिंग द सिंगल सेल प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज नोवेल प्रोटीन और मिनी फूड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था. उसमें से एक उसका कॉन्सिक्वेंस ये था कि आने वाले वक्तों में जो फूड शॉर्टेज जो है ये सबसे बड़ा मसला होगा. तो साइंटिस्ट ने इसी के ऊपर काम किया और इसके ऊपर उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने सिंगल सेल प्रोटीन मेथड जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया और अब वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं ताकि दुनिया में ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से जो फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम सामने आएगा उससे निपटा जा सके. सो वी नो दैट ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज. इन फ्यूचर द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड्स, जो हम रिवायती जो ज़रात के यानी काश्तकारी के जो तरीक़ेकार हैं वो इतने सफिशेंट नहीं हो सकेंगे कि उनसे इतनी ज़्यादा आबादी को ख़ुराक जो है वो मुहैया की जा सके, इनको सप्लाई की जा सके. might not be able to provide a sufficient supply of food, especially the proteins, to the overpopulated areas. So उसके लिए dear students क्या, for a better management of food shortage problems in humans and domestic animals, the use of microbes as the producers of single cell proteins has been successfully on experimental basis. तो उन्होंने experimental basis पे काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हासिल की है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो प्रोटीन बनवाने में ख़ास तौर पर. सो दिस टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट MCQ. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर स्क्रिमशॉ ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. सो प्रोफेसर स्क्रिमशॉ
it is the MCQ who introduced the single cell protein technology by using genetic engineering. So scientists and food technologists believe that single cell proteins will substitute the other protein rich foods in the human and animal fields. ऐसा ख्याल है किया जाता है कि जो साइंटिस्ट कि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो इस पर बिलीव करते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन्स के ज़रिए जो प्रोटीन्स हासिल की जाएंगी वो नॉर्मली जो खुराक में इस्तेमाल होने वाली प्रोटीन्स जो हैं उसका सब्स्टिट्यूट साबित होंगी, क्योंकि आने वाले वक्तों में इतनी ज़्यादा जो ज़मीन है वो अवेलेबल नहीं, इट इज़ नॉट सफिशेंट फॉर the provision of enough food to all the human population as well as the other animals. So dear students, in the last, all scientists recognize the significance of production of single cell protein. जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसकी अहमियत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं. The microorganisms grow vigorously. Vigorously means कि बहुत rapidly. They grow very rapidly. और dear students, यहाँ पर growth का मतलब again लेक्चर में पहले बता चुका हूँ, that is increase in the number of bacteria is called the growth or rapid growth or vigorous growth and produce a high yield. जितने ज़्यादा वो तेज़ी से ग्रो करेंगे, जितने ज़्यादा वो तेज़ी से उनका नंबर इंक्रीज़ करेगा, उतने ही ज़्यादा वहाँ से हमें हाई यील्ड मीन्स के प्रोडक्ट्स हासिल होंगे. It has been calculated that 50 kilogram of yeast, dear students, again यहाँ पर आया, that is a unicellular non-hyphal fungus. Dear students, यूनिसेलर का मतलब सिंगल सेल्ड और नॉन हाइफल. आमतौर पर जो फंजाई होते हैं, the fungi, they are made up of thread-like filaments. Their body is made up of thread-like filaments, which are called hyphae. So जो यूनिसेलर फंजाई होते हैं, यानी कि जैसे कि यीस्ट, दे आर नॉन हाइफल. इनके अंदर हाइफे नहीं बनते, मीन्स कि उनके अंदर वो थ्रेड लाइक फिलामेंट्स नहीं बनते हैं. Clear? So 50 kilogram of yeast produces about 250 tons of protein. और ड्यूरेशन dear students कितने में? In only within 24 hours. 24 घंटे में from 50 kg by using yeast, 50 kilograms of yeast ये बनवा रही है 250 tons of proteins. और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जो यीस्ट जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है वो प्रीवियस जो कन्वेंशनल मेथड्स में इस्तेमाल होते हैं वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर वेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर वो नेचुरल गैस लाइक मीथेन, दैट इज़ CH4, और by using industrial waste or by using the agriculture waste. So ये उनको इस्तेमाल करके yeast क्या बनवा रही है? 250 tons of proteins and only within 24 hours. एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी बल्क क्वांटिटी में प्रोटीन्स बनवाई जा रही हैं. इसी तरह से स्टूडेंट्स, द algae grown in ponds, algae
Algae का पता है ना डियर स्टूडेंट्स आपको, what are algae? So algae, they are plant like protists. So algae grown in ponds produce 20 tons dry weight of protein per acre per year. यानी कि एक साल के अंदर एक एकड़ में कितना 20 टन्स 20 इट्स अ ह्यूज अमाउंट जो कि सिर्फ किससे प्रोड्यूस करवाया जा रहा है एलजी से प्रोड्यूसेस 20 टन्स ऑफ प्रोटीन मीन्स और ये इसका ड्राई मैस की बात हो रही है ड्राई वेट की बात हो रही है पर एकड़ पर ईयर। इसी तरह से स्टूडेंट्स द यील्ड ऑफ प्रोटीन इज 10 to 15 times higher than the soybeans and 20 to 50 times higher than the corn। यानी कि सोयाबीन से जो प्रोटीन हासिल किया जाता है और इतने ही अरसे में और इतने ही लैंड एरिया पे ये उससे अगर हम कंपेयर करें सोयाबीन को और फिर उसको कंपेयर करते हैं कॉर्न को तो एलजी की जो प्रोडक्शन है दैट इज इट इज 10 to 15 times greater than the soybean and 20 to 50 times higher than the corn. When single-cell proteins are produced by using yeasts, the products also contain high vitamin content. तो ये इसके साथ एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि प्रोटीन के साथ साथ विटामिन्स भी मिल रहे हैं, लेकिन ये किस सूरत में, जब सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज yeast. In the production of single cell proteins, industrial wastes are used as raw material for the microorganisms. It helps in controlling pollution. इसका ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि पॉल्यूशन जो है वो इस तरह से कंट्रोल हो सकेगी कि आप उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को बजाय इसके उसको डंप करने के समुद्रों में डंप करने के आप या उसको वाटर बॉडीज़ में डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में उसको डंप करने के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको फ़ायदेमंद चीज़ें जो हैं वो उससे बनवा सकते हैं। अल्टीमेटली इट आल्सो हेल्प्स, ना सिर्फ फूड शॉर्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है बल्कि इसी तरह से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो जिसने जाकर वाटर पोल्यूशन कॉज करनी थी वो वाटर पोल्यूशन से बचा जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। द यूज़ ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स हैज़ गुड प्रॉस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर। आने वाले वक्तों में, आने वाले कुछ अरसे में बहुत अच्छा इसका प्रॉस्पेक्ट्स होंगे, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी बिकॉज they contain all essential amino acids. So dear students, what is meant by this line? They contain all essential amino acids. Dear students, आपने previous classes में भी पढ़ा होगा और hopefully मैंने भी आपको पहले इस बात का जिक्र किया है कि जो amino acids होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। टोटल amino acids हमारी बॉडी में 170 टोटल, और उसमें से 25 जो हैं वो दे आर यूज्ड फॉर प्रोटीन्स मेकिंग, और उस 25 में से भी डियर स्टूडेंट्स जो 20 हैं दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड। सो अमाइनो एसिड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं into essential and non-essential amino acids.
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसेंशियलिटी और नॉन इसेंशियलिटी का मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि ये हमारे लिए ज़रूरी हैं और वो जो है बाकी जो है वो ज़रूरी नहीं है. वी आर जस्ट डिवाइडिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग इन डाइट. डाइट के बिहाफ के ऊपर, डाइट की बेसिस के ऊपर हम इनको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कहते हैं. तो इन 20 में से 10 इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल हैं जो 20 फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहे हैं. Essential means that our body do not produce them. So it is essential to be taken in diet. मीन्स कि हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं करवा रही, इस वजह से ये डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, डियर स्टूडेंट्स, दे आर सिंथेसाइज्ड by our body, so they are not required to be taken in the diet, so that is why they are called as non-essential amino acids. और मज़े की बात यह है कि डियर स्टूडेंट्स के जो सिंगल सेल प्रोटीन से इस मेथड से जो प्रोटीन्स बनवाई जा रही हैं, उनके अंदर वो तमाम अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. वो तमाम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स उनके अंदर मौजूद हैं. तो इसका ये बहुत बड़ा एच है. मोर ओवर, द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस. तो इसमें कोई सीजनल जो वेरिएशंस होती हैं उसका भी कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके उनसे प्रोटीन्स बनाई जा सकती हैं. सो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.